Assalamu alaikum, dear students. My dear students, we are going to start a new chapter from your physics portion, and the title of the chapter is the stars and solar system. ठीक है बेटा, as this comes under the physics portion and particularly किसके अंडर ये आता है, that is the astrophysics. Astrophysics का एक पार्ट है ये stars and solar system. ठीक है, in this chapter we will be dealing with the stars, with the solar system, with the bodies that are present in the sky such as moons, sun. We'll be talking about the asteroids, which will be talking about the planets, comets, etc. ठीक है, we will be discussing them one by one in this chapter. Okay, so before discussing इसका जो बेसिक पहली बेसिक डेफिनेशन जो हमने जाननी है, that is what are celestial bodies, what are celestial objects, और उनको हम हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं. आर यू गेटिंग मी बेटा? सो हमारा पहला इंट्रोडक्शन जो अबाउट द चैप्टर होगा दैट इज़ अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज़. सेलेस्टियल बॉडीज़ में व्हाट आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स? सिंपल, जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी बॉडीज़ प्रेजेंट होंगे स्काई में, द बॉडीज़ विच आर रिजाइडिंग इन द स्काई, एंड दे इंक्लूड मून, they include sun, stars, planets, comets, asteroids. Okay beta, etc. These are the bodies that are present in the sky and they are called as simply celestial bodies. तो celestial objects क्या objects होते हैं? Heavenly objects क्या heavenly इसलिए because they are very much heavy. Heavenly bodies are those bodies, or celestial objects are those objects which are present in the sky. ठीक है, and some of the objects that are moon, sun, stars, planets, comets, and we will have to discuss them one by one about the celestial. ये chapter जो होगा it belongs to those bodies, study about the moon, sun, stars, planets, comets, asteroids in detail. Okay, let's take the first heavenly object, heavenly body, that is the moon. Okay, we'll be discussing about moon, so we'll have a basic introduction about the moon. एंड मून क्या है? सिंपली मून के सम फीचर्स हैं जो आपको पता होंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे. मून जो है मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट. ओके, मून जो है वो रिवॉल्व कर रही है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट. ओके, अगर मून है ये, अगर सपोज दिस इज द मून. Okay, let me give you the analysis regarding the sun, moon, and earth. What about the revolution? What about the rotation? Okay. Before discussing about the moon, let me give you a brief overview about the three bodies that are the moon, earth, and sun. ठीक है बेटा? अब देखो, अगर मैं अर्थ की बात करूँगा, अर्थ जो है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन. याद थे जो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक, अर्थ जो है, सपोज दिस इज द अर्थ revolves around, this is the earth, and it revolves around the sun. This is the sun. Are you getting me? And this is the earth revolves around the sun. एक तो ये रोल, सो अर्थ की रेवोल्यूशन होती है अराउंड द सन. एंड ऑल्सो ये जो सन होता है, सन रोटेट करता है अपनी ओन एक्सिस पे. ठीक है, एट रेस्ट में होता है लेकिन ये रोटेट करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, याद रखो ये. ओके, अब ये मून जो है, मून रोटेट करी, रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ. ओके, ये जो मून होती है, मून, लेट अस सपोज दिस इज ए मून, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट. इसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है मून का. इट रोटेट्स अराउंड दिस अर्थ इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट. ओके, अब ये रिवॉल्व्स करती है अराउंड द अर्थ इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट. सो इसका जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, इसका जो कंप्लीट रेवोल्यूशन, किसका? मून का जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, वो कंप्लीट होता है 29.5 डेज में. इट टेक्स अबाउट 29.5 डे टू कंप्लीट द होल रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. हु? मून. आई एम टॉकिंग अबाउट द मून. सो अर्थ रोटेट रिवॉल्व करती है, अर्थ रोटेट भी करती है, अर्थ की रोटेशन भी होती है, अर्थ की रेवोल्यूशन भी होती है. आर यू गेटिंग मी? रोटेशन अबाउट द सन,
and revolution about the sun and rotates about its own axis. ये moon है, let us suppose this is the moon. Moon revolves around the earth, and the number of days, that is the 29 and a half days, are needed to complete one whole, yes, revolution. Okay, and इसको हम क्या कहते हैं, 1 month. Simply it takes 1 month. Okay, it takes 1 month to complete the whole revolution around the earth. Who? The moon. Okay, we are talking about. And one of the fact is also, moon जो है, moon is the closest celestial object to earth. Okay, moon is the closest celestial object to earth. Are you getting me? We are talking about the moon now. मून जो है बेटा, मून जो क्या करती है, मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट टू द अर्थ. याद रखो, मून रोटेट नहीं करती है. मून डज नॉट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ओके, मून रोटेट नहीं करेगी, ओनली मून रिवॉल्व्स. देखो, रोटेशन और रेवोल्यूशन मतलब अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ घूम रही है अपने थ्रू एक्सिस के अराउंड, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज द सन. बट द स्टोरी इज डिफरेंट फॉर द मून. मून ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ठीक है, मून ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, बट मून डज नॉट रोटेट. मतलब मून एक रेस्ट में, दिस इज द, देखो, दिस इज मून, it rotates around the, it revolves around the earth. Okay, and this is earth is rotating, also rotating, also revolves. Okay, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुआ. मून जो है, मून ओनली रिवॉल्व्स नॉट रोटेट्स. ये रेस्ट में होती है, रेस्ट में ये रिवॉल्व करेगी आफ्टर. इसका जो स्टेट है, दिस इज इसका ओरिजिनल स्टेट. अगर मून का स्टेट, खुद का स्टेट देखेंगे तो ये स्टेट होगा रेस्ट में. एंड ये रेस्ट स्टेट मतलब को, वट दैट डजेंट मीन कि मून रेस्ट में है, नहीं. आई मीन टू से, ये रोटेट नहीं करेगी, ये रिवॉल्व करती है. दैट इज वाई रोटेशन और रेवोल्यूशन में फ़र्क है. मतलब अर्थ रिवॉल्व भी करती है अराउंड द सन, अर्थ रोटेट भी करती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस. मून डज नॉट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस. सन रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस. सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड एनी बॉडी. ठीक है, गो. ओके, सन, इसी को हम सन को हम मतलब इन टर्म्स कहते हैं कि सन जो है वो रेस्ट स्टेट में, अपनी ही स्टेट में वो घूमता है और वापस आ जाता है. ठीक है, अपनी ही ओरिजिनल स्टेट में. ठीक है. एंड मून जो है, इट्स द, मैंने आपको कहा कि इट्स द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट टू अर्थ. ओके, अब टॉकिंग अबाउट द डाया ऑफ मून, डायमीटर ऑफ द मून. ओके, विल टॉक अबाउट द डायमीटर ऑफ द मून. इसका जो डायमीटर होता है, याद रखो, डायमीटर ऑफ मून. ओके, वो डायमीटर ऑफ अर्थ का 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. ओके, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू द 1/4. जितना डायमीटर अर्थ का होता है, इसका फोर्थ, इसका चौथा हिस्सा. ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ दैट becomes the dia of moon. Okay, एंड टॉकिंग अबाउट द mass ऑफ मून, mass भी इसका कम ही होता है एज कम्पेयर टू द अर्थ. इसका mass होता है 1/18 ऑफ mass ऑफ अर्थ. ओके, जितना mass ऑफ अर्थ होता है, इसका 1/18. अगर इसको 18 हिस्से करेंगे तो ये जो एक हिस्से का mass होगा, दैट बिकम्स द mass ऑफ मून. ओके, so this is the fact regarding the dia and mass of the moon. And moreover, अगर मून का जो स्टेट देखेंगे, मून का जो स्टेट होता है, स्टेट मून कैसे दिखती है. ठीक है, इसका जो सरफेस होता है, सरफेस में बहुत सारे, द सरफेस ऑफ मून हैज़ लॉट ऑफ ग्रूव्स. ये उसका सरफेस स्मूथ नहीं होता है. इसमें इवन माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रूव्स एंड माउंटेन्स. आर यू गेटिंग मी? मतलब ये जो मून होता है, इसका सरफेस स्मूथ नहीं होता है. ठीक है, इसका सरफेस स्मूथ नहीं होता है. इट हैज़ लॉट ऑफ ग्रूव्स एंड माउंटेन्स. सम ऑफ द माउंटेन्स आर हायर देन द माउंटेन्स इन द अर्थ. आर यू गेटिंग मी? सच आर द स्टेट फॉर द मून, दैट इसके जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन रीजन्स जो होते हैं, वो इतने हायर ऑल्टीट्यूड के होते हैं. दे आर इवन बिगर, सम ऑफ दम आर इवन बिगर देन द माउंटेन्स इन अर्थ. ठीक है, these are the facts regarding the moon. Okay, and moon has no atmosphere and no water. Moon has no atmosphere and water.
वहाँ पे ना एटमॉस्फेयर फाउंड होता है ना वाटर फ्रॉम प्रेजेंट होता है, ठीक है। वी कैन नॉट टॉक ऑन द मून, वी कैन नॉट टॉक बिकॉज मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। एंड आपको पता है कि साउंड जो है, साउंड नीड्स मटेरियलिस्टिक मीडियम। वी कैन नॉट इवन लिसन, ओके, वी कैन नॉट लिसन ऑन द मून बिकॉज साउंड जो है वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वहाँ पे वैक्यूम होता है। साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता एटमॉस्फेयर, सो एज सच वी कैन नॉट लिसन, ओके। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट ऑन 21st of July, 21st of July 1969, okay, there were two scientists. Number first was Neil Armstrong, and number second we had Edwin Aldrin. Okay, first Neil Armstrong, and and Edwin Aldrin. Okay, these were the scientists who landed first on the moon. And what was the date? It was on 21st of July 1969, wherein Neil Armstrong and Edwin Aldrin presented the foot on presented their feet on first time on moon. Okay, and this was all about the facts regarding. These were the facts regarding the moon. Okay.